السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ نکاح اور کامیاب شادی کا یہ 5واں کلاس ہے، جس کا عنوان ہے پیغام نکاح۔ سامعین کرام، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، شادی انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ پوری زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ، سعادت مندی اور نیک بختی کے ساتھ زندگی گزارے اور ایک نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل دے۔ اسی لیے دین اسلام نے عقد مسنون، نکاح مسنون کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام کی رہنمائی اور نشاندہی کے مطابق جو بھی آدمی سوجھ بوجھ کر رکھتے ہوئے دانائی اور ہوشیاری سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق شادی کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اسے ضرور سعادت مندی میسر ہوگی اور نصیب ہوگی۔ آج کے درس میں میں بتلاؤں گا کہ کیا شادی کرنے سے پہلے نکاح کا پیغام نکاح دینے سے پہلے اس لڑکی کو، اس عورت کو دیکھنا جائز ہے جس سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نکاح کا پیغام دینے سے پہلے، پیغام نکاح سے پہلے کچھ اسٹیج ہیں جس پر چل کر کے ہی ہم کامیاب شادی رچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ شادی کا مقصد عفت اور پاک دامنی، آبرو اور عصمت کی حفاظت اور پاک دامنی اختیار کرنا۔ نمبر 2، نسل انسانی کی زیادتی اور ان کی حفاظت۔ نمبر 3، پوری زندگی خوشیوں کے ساتھ گزارنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ ضرور سنیں جو ابھی تک شادی نہیں کیے ہیں اور شادی کرنے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ ضرور سنیں۔ شادی رچانے سے پہلے، عقد مسنون سے پہلے، شادی کا پیغام کسی بچی کو یا کسی عورت کو شادی کا پیغام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے کہ اس لڑکی کو، اس عورت کو دولہا، شوہر، لڑکا دیکھ لے، نکاح کا پیغام، شادی کا پیغام دینے سے پہلے۔ اور دیکھنے کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ انہی وجوہات میں سے
ایک وجہ تو یہ ہے کہ یقیناً ایک آدمی عفت و پاک دامنی حاصل کرتے ہوئے اپنی شریک حیات جسے بنانا چاہتا ہے، زندگی کا جیون کا ساتھی جسے متعین کرنا چاہتا ہے اور اس سے وہ شادی کرنے کا عزم اور ارادہ کیے ہوئے ہے، تو اس کو پہلے دیکھنے سے دونوں کے درمیان ایک طرح سے یگانگت، محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کا، شادی کا پیغام دینے سے پہلے آپ اسے دیکھ لیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر إلى ما يدعو إلى نکاحها فليفعل۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح دینے کا، شادی کا پیغام دینے کا ارادہ کرے اور اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اس لڑکی کے اندر وہ چیز دیکھ لے جس سے اس کے دل کے اندر اس سے شادی کرنے کا لگن، طلب اور شوق پیدا ہو، تو وہ ایسا کرے، وہ ایسا کرے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے سنا تو میں نے ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دینے کا ارادہ کیا یا پیغام نکاح دیا، تو میں چھپ چھپ کر اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا چھپ کر، میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا اور اس کے جسم میں وہ چیز دیکھی جس چیز کی وجہ سے، جس چیز نے مجھے اس سے شادی کرنے پر ابھارا اور میرے اندر شوق دلایا، چنانچہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داود کی حدیث نمبر 2082 کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ گویا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے دو مسئلہ ثابت ہوا۔ ایک مسئلہ، یہ ذرا غور سے سنیے گا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس سے ہم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کو ہم پیغام نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اسے دیکھ سکتے۔ کن شرطوں کے ساتھ آگے میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں کتنی شرطیں ہونی چاہیے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جس سے ہم شادی کرنے کے متمنی ہیں یا نکاح کا پیغام دینے چاہتے ہیں، چھپ کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ زمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو یا لڑکیوں کے گارجین کو نکاح کا پیغام دیا جاتا تھا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج زمانہ الٹ گیا ہے، لڑکی والے راشن پانی باندھ کر، بستر اور لوٹا باندھ کر بیچارے خریدتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور لڑکے والے کہتے ہیں دولہا بکتا ہے کون خریدے گا، دولہا بکتا ہے کون خریدے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ لڑکا بھی
लड़की के गार्जियन के जरिए लड़की को शादी का पैगाम दे सकता है और लड़की भी अपने गार्जियन के जरिए किसी को शादी का पैगाम दे सकती, इसमें कोई हरज नहीं है शरीयत के दायरे में रहते हुए। तो ये 3 मसला इस हदीस पाक से साबित हुआ। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने 6 शर्तें जिक्र की हैं। अगर कोई शख्स किसी ऐसी लड़की को देखना चाहता है जिससे शादी का मुतमन्नी ख्वाहा है, तो इस देखने में 6 शर्तें पाई जानी चाहिए। 6 शर्तें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के लड़की को जो वो आपके लिए अजनबी है, जब चाहे जैसा चाहे जिस अंदाज के चाहे आधा देखे पौना देखे पूरा देखे, ऐसा मसला नहीं है। कोई इस दर्स से ये नतीजा नहीं बरामद करेगा कि अताउर्रहमान सईदी ने कह दिया जिसको चाहो देखते रहो, जो पसंद आ जाए उसी से कर लो। बात ऐसी नहीं है। शादी का पैगाम देने से पहले देखना जायज है जब 6 शर्तें पाई जाए। इन 6 बातों का देखने में पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, तन्हाई में नहीं, एक रूम में, किसी जंगल और झाड़ी में, किसी गली और कूचे में, तन्हाई में नहीं। तन्हाई का मतलब ऐसी तन्हाई ना हो कि जिस तन्हाई या अजनबिया के साथ खलवत लेने की ममानअत आई, तन्हाई में नहीं दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? लड़की है, उसके साथ उसका बाप है, उसके साथ उसका भाई है, उसके साथ उसका कोई मुहरिम हो, तब आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि अकेले चुपके से रूम में बैठ करके दोनों आदमी बैठ करके देख। हाँ, छिप कर आमतौर पर लड़की जाती है, आप गए और बगैर उसको एहसास दिलाए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता, बगैर उसको एहसास दिलाए, बगैर उसको खबर दिए आप एक नजर डाल लिए चेहरे पर, हथेली पर, इसमें कोई हरज नहीं। अगर आगे वाली शर्तें पाई जाती तो पहली बात देखना कब होगा? जब बिना खलवत के हो, बिना तन्हाई के हो। नंबर 2, बिना हैवानी शहवत के हो। बिना शहवत, शहवत का मतलब तो आप लोग जानते, तन्हाई भी ना हो और शहवत बदकारी की, फहशकारी की, जनाकारी की, इंसानी शहवत जिसको मैं आम तौर पर हैवानी शहवत कहता हूँ, बिना शहवत हो। ऐसे ही एकदम नॉर्मल, जैसे एक बाप और बेटी इकट्ठा बैठते हैं और बाप और बेटी दोनों के दिलों में किसी तरह के एक दूसरे के बारे में शहवत नहीं पाई जाती है। नंबर 3, उस वक्त देख सकते हैं जब आपके ज़हनो दिमाग में ज़्यादा गुमान ये हो कि वो लड़की हमें कबूल कर लेगी, कबूल करने का गालिब गुमान हो। आप उस लड़की को देख सकते हैं निकाह का पैगाम देने से पहले, जिस लड़की के खानदान, वरसा और उस लड़की के बारे में आपको गालिब गुमान हो, ज़्यादा यकीन हो कि अगर मैंने उसको शादी का पैगाम दिया तो वो कबूल कर लेगी या उसके गार्जियन कबूल कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, आपको गुमान है कि अरे भाई वो तो नहीं कबूल करेगी या उसके गार्जियन नहीं कबूल करेंगे मेरा पैगाम, तो आप उसको नहीं दे सकते। इसकी मिसाल ये समझिए कि आप एक मिनिस्टर हैं और आपके घर पर एक नौकर है, पहरादार, जो घर में झाड़ू लगाता है, सफाई का काम करता है। अब अगर वो मिनिस्टर साहब, वो झाड़ू का काम करने वाला इंसान आपकी लड़की को या आपको आपकी लड़की के बारे में शादी का पैगाम दे, तो क्या आप कबूल करेंगे? तो देखना चाहिए। लोग कहते हैं पहले अपना चेहरा देख ले। न्याय परले दर्जे का जाहिल
बदखुल्क, समाज के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं। अब वो जाए बादशाह की लड़की को शादी का पैगाम दे तो क्या आप कहेंगे वो बेचारा निहायत पागल और दीवाना है। तो गालिब गुमान हो कि अगर पैगाम मैंने दिया तो लड़की मुझे स्वीकार कर लेगी, मुझे कबूल कर लेगी और उसके बाद यार कबूल कर लेंगे। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त ये है कि उस लड़की के जिस्म का उतना हिस्सा देख सकते। राजिह मसला यही है कि उस लड़की के जिस्म का उतना हिस्सा देख सकते हैं जितना आम तौर पर देखना जायज है, जैसे चेहरा। और भी उस लड़की को खबर ना हो, उस लड़की का खबर ना हो कि ये मेरा मंगेतर होने वाला है या इसके दिल में मुझसे शादी करने का जज्बा है, उस लड़की को जर्रा बराबर खबर ना हो। इसमें बहुत बड़ी मसलहत है, क्योंकि लड़की को अगर खबर है कि ये मुझे देख रहा है, मुझसे शादी करना चाहता है, तो पेट्रोल की जगह माचिस का काम करेगा। लड़की को बिल्कुल खबर ना हो कि ये मुझे देख रहा, और उतना देख सकता है जितना आम तौर पर कारोबार के वक्त खुल जाता है, जैसे चेहरा। चेहरा देखने से जिस्म का गोरा होना, काला होना, सांवला होना, नाक मोटी होना, ओठ मोटी होना या मोटा होना या पतला होना या खूबसूरत होना अंदाज़ा लग जाएगा। एक नज़र देख लिया, अंदाज़ा हो गया। खलवत ना हो, शहवत ना हो और गालिब गुमान हो कि कबूल कर लेगी। और चेहरा, और इसी तरीके से हथेली, क्योंकि हथेलियों के देखने से पता चल जाएगा कि जिस्म के साख या बनावट या उसके अंदर हरियाली और सब्जी है कि नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि कदम भी देख सकता है, कदम भी देख सकता, बस इतना ही। चेहरा, हथेली और कदम, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगरचे आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप उसके लिए अजनबी हैं। इसी तरीके से पांचवी शर्त यह है कि वही लड़का देख सकता जो मुकम्मल, पक्का, पुख्ता अज़्म और इरादा रखे कि अगर लड़की और लड़की के गार्जियन ने कबूल कर लिया तो मैं शादी करूंगा, तो मैं शादी करूंगा। अगर ये इरादा नहीं है, नजर बघाड़ना है, नजर की चाशनी लेनी है, तब ऐसा आदमी नहीं देख सकता। यानी ये गालिब गुमान हो, पक्का इरादा हो, अच्छी नीयत हो, बिल्कुल सच्ची नीयत हो कि इस लड़की को मैं निकाह का पैगाम दूंगा और अगर इस लड़की ने कबूल कर लिया तो मैं जरूर शादी करूंगा। ये नहीं कि चॉइस करने के चलो फला की लड़की को देख लो, शादी का झांसा देख करके, फला की लड़की को देख लो, शादी का झांसा दे करके, या 10-20 लड़कियों को बिठा लो। हाँ, ये मामला नहीं है। अज़्म हो, इरादा हो। आज समाज के अंदर ऐसा पाया जाता है, लड़के वाले ऐसा करते हैं कि सैकड़ों, दसियों लड़कियों को देखते हैं सिर्फ चॉइस करने के लिए, और फिर उस लड़की की रुसवाई और बेइज्जती भी होती। छठी शर्त यह है, जो ये तो अभी तक लड़के के लिए हुआ, तन्हाई ना हो, शहवत ना हो, उसे गालिब गुमान हो कि मेरा पैगाम निकाह ये लड़की कबूल कर लेगी, और सिर्फ चेहरा या हथेली और कदम देख सकता है, और पक्का इरादा हो कि अगर कबूल मैं कर ले गया तो मैं ज़रूर शादी करूंगा। छठी शर्त लड़की के लिए है, लड़की बेपर्दा उस लड़के के सामने ना आए, लड़की बेपर्दा उस लड़के के सामने ना आए। क्योंकि लड़की बदन खोलकर, गला खोलकर, बाल खोलकर, लाली लिपस्टिक लगा करके, हाँ, या बिल्कुल बेपर्दगी की हालत में अगर आ रही है तो यह हराम और नाजायज और गैर शरई अमल है। तो ये 6 शर्तें अगर पाई जाती हैं तो एक नहीं कई अहादीस से ये बात मालूम होती है
کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ پیغام نکاح دینا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں ان 6 شرطوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار۔ دیکھنے کا فائدہ اس حدیث کے اندر 2 چیز ہے۔ دیکھنے کا فائدہ، ابھی پیغام نکاح دینے سے پہلے دیکھنے کا فائدہ کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا مختصر طور پر، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا، اسے تم دیکھ لو، اسے تم پیغام نکاح دینے سے پیشتر، شادی کا پیغام دینے سے پہلے تم اسے دیکھ لو، کیونکہ اس کے اندر کیا اللہ کے رسول نے حکمت بتائی، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، شادی سے پیغام نکاح دینے سے پہلے اگر تم نے دیکھ لیا تو زیادہ چانس ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت زیادہ رہے گی، پائیداری رشتے میں زیادہ رہے گی، خیر و بھلائی زیادہ رہے گی، تم بھی اس سے مطمئن ہو جاؤ گے اور وہ بھی تم سے مطمئن ہو جائے گی۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغام نکاح دینے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اور اتنا ہی دیکھیں گے جتنا شریعت، اور اسی انداز سے دیکھیں گے جتنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اگر لڑکا نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو گھر والوں میں سے جن پر اس کو اعتماد ہو، اپنی بہنوں پر، اپنی کیا کہتے ہیں خالاؤں پر اور اپنی ماں پر، ان سے کہے کہ اس انداز سے دیکھ لیں کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لوگ آئی ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، انگوٹھی پہنانے کے لیے، کیونکہ پہلے تو پسند کی بات ہوگی نا، پہلے لڑکا پسند کرے یا لڑکے کے گارجین پسند کریں، اس کے بعد معاملہ نکاح کے پیغام دینے کا۔ آج ہمارے سماج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ پورا جھمیلا لے کر لڑکی کے گھر والے کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اچانک چونکہ لڑکی کو دیکھتے پسند نہیں آتی، سارا کھا پی کے پیٹ بھر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں، یا تو لڑکا خود دیکھے، چھپ کر کے بھی دے سکتا ہے، لیکن میں نے بتلایا کن شرطوں کے ساتھ، یا اپنے کسی قابل اعتماد آدمی گارجین کے ذریعے وہ دکھائے۔ یہاں ایک جہالت پائی جاتی ہے۔ میری بھی جب شادی ہوئی تھی، بیان نہیں کرنا چاہیے، اس وقت میں جامعہ سراج العلوم کوڈو بونڈیہار میں پڑھ رہا تھا، خامسہ جماعت میں۔ بہر مجھے بونڈیہار سے بلایا گیا گھر پہ جب آیا تو والدہ نے کہا کہ عطا رحمان میں تمہاری بیوی کو میں تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھنا چاہوں۔ میں بہت کوشش کیا، بہت اشارے کر، ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتا، ہمارے یہاں کچھ تہذیب بھی بڑی جاہلانہ ہے، بہت جاہلانہ تہذیب ہے، اس تہذیب کو میں پیروں کی طرح رونتا ہوں۔ شادی مجھے کرنی ہے، مجھے ہی نہ دکھایا جائے، ہمیں اپنے شریک حیات کو چننا ہے، ہمیں بھی اس سے شریعت کے دائرے میں رہ کر مانوس ہونا ہے۔ ہمارے اندر بھی کچھ پلان ہے، کچھ خیالات ہیں، کچھ ہماری چوائس ہے، ہمیں بھی اسے جھیلنا ہے، اس کو ہمیں جھیلنا ہے، یا تو بیوی ہمیں جھیلے گی یا تو ہم اس کو جھیلیں گے۔ لاکھ کوشش کیا، نو چانس، لاکھ کوشش کیا، اشارے کے ارے بھیا ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بڑا بھائی داروغہ ہوتا ہے، اور وہی بڑا بھائی بعد میں ظلم کرتا، داروغہ بھیا کے سامنے کون بولے گا؟ ابا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ تو اشارہ کر گئے میرے حساب سے، والدہ اللہ ان کو جنت دے، لیکن والدہ بہرحال والدہ تھی۔ آج بھی لڑکا چاہتا، دو چیز خرابی ہے ہمارے سماج کے اندر، نوجوانوں سنو، ایک تو یہ ہے کہ ہم چوری کر کے، چمرائی کر کے، بدتمیزی کر کے لڑکیوں سے خود سیٹنگ کر لیتے ہیں،
اور निकाह से पहले, पैगाम निकाह से पहले वो सारे फहश काम हो जाते हैं जिसको कुरान ने हराम करार दिया है। छूना छाना, चुम्बन चाटी वगैरह, बात चाटी वगैरह वगैरह। दूसरी चीज ये भी कमी है कि लड़के को सारा गांव देखे, टोले मोहल्ले वाले देखें। माफ करेंगे, आप लोग जानते हैं, खास तो हर जगह करीब करीब ये चीज हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। जब दूल्हा, किसी लड़की का दूल्हा आंगन में आता तो सारी मोहल्ले की बूढ़ियां, जवान और लड़कियां सब दूसरों के दूल्हे को देखने के लिए जाती हैं, और ये जो दूल्हा बनने वाला है उसको वो नहीं दिखाते, है कि नहीं? हालांकि ये होना चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल अकरम ने हिकमत बतलाई है कि ये देखना एक दूसरे को, भाई लड़की भी मुतमईन हो जाए कि तारमान काना है कि लूला है कि लंगड़ा है, आंख धसी हुई है, छोटी छोटी है, भाई उसकी भी कुछ पसंद है, उसे भी इख्तियार दिया जाए कि भाई ये अताउर रहमान साहब हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं, तुम अताउर रहमान को पसंद करती हो कि नहीं, और अताउर रहमान भी अपनी पसंद जो है देख ले, क्योंकि उनको भी कुछ जिंदगी भर झेलना है, बर्दाश्त करना है। तो ये भी बात गलत है कि सबसे बेपर्दा लड़की निकले, सबके सामने बेपर्दा आए, हाँ, पूरे टोले मोहल्ले वालों के सामने, घर वालों के सामने, सारे रिश्तेदारों के सामने। हाँ, अताउर रहमान अगर उसको शादी का पैगाम देना चाहते हैं तो अताउर रहमान नहीं दे सकते। ये हमारे यहाँ एक जाहिलाना माहौल है। तो पहला मसला, शरीयत के दायरे में रहते हुए पैगाम निकाह देने से पहले लड़की को देखना जायज है, दुरुस्त है, हलाल है, और देखने में खैर और भलाई है, ताकि वो भी, लड़की भी जान जाए कि शायद यही हमारे शरीके हयात बनाएंगे, और लड़का, लेकिन खबर ना हो, कोशिश की जाए खबर ना हो। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चलता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लिया आप घर पे गए, लेकिन कब जाएंगे घर पे? जब आपका पूरा पक्का इरादा हो कि अगर मैं कबूल कर लिया गया तो मैं शादी करूंगा। लड़की के घर गए, लेकिन आप कब जाएंगे देखने के लिए? ये नहीं कि देख लेंगे जहेज मिलेगा कि नहीं, काली है, लूली है, लगड़ी, किसी तरह आपने पता लगा लिया, उसकी सिफत को आपने जान लिया, उसके अखलाक को आपने पता लगा लिया। अगर घर पे उसके जा कर के देखते, आजकल यही बेहतर तरीका है कि घर पे बुला करके ना दिखाए, क्योंकि अगर लड़का या लड़के के गार्जियनों को पसंद लड़की नहीं आई तो जाहिर सी बात है, या तो कोई तोहबा लगाएंगे और या तो बयान करेंगे, शोर हो जाएगा, फला आए थे देखने, क्या हुआ। अल्लाह के कसम, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि लड़की को देखने के लिए घर चली गई 4 औरतें, लड़की का बाप और लड़की की माँ परेशान रहती है, हैरान रहती है। पूरा गांव जान गया, पूरा टोला मोहल्ला जान गया कि मेरी बच्ची को आज देखने आए हैं, कहीं ऐसा ना हो ना पसंद हो जाए और इस बात का चर्चा हो जाए, फिर कोई ना पसंद करे। है ये बात की नहीं है? पहले आप अम्मी जान, अब्बू जान, बहनों, आप चाहती को अतारमान की शादी फला लड़की से हो तो कम से कम उस लड़की के बारे में इनडायरेक्ट दूर से पहले पता लगा लो, उसके चाल चलन का पता लगा लो, उसके अखलाक का पता लगा लो, उसके रंग और रूप और जिस्म का पता लगा लो, फिर उसके बाद उसके घर जाओ और इस इरादे से जाओ कि मैं लड़की अगर पसंद आ गई, अपने आंख से देख रहे तो मैं शादी करूँ, और चुपके से जाऊँ। तो मान लिया आप लड़की के घर गए, लड़की आप बैठे हैं, उसकी माँ भी बैठी, उसका बाप भी बैठा, माँ नहीं क्योंकि माँ अभी अजनबिया है, लड़की की माँ नहीं, वो अजनबिया है, बाप बैठा, भाई बैठा। लड़की आई, एक कप चाय लेकर के टेबल पे रखे, आप बिल्कुल आंख अपनी चिदोर के देख लें, खोल करके देख लें। जाहिर सी बात, वो शर्माई हुई होगी, मुंडी झुकाई हुई होगी, कांप रही होगी, दहल रही होगी,
खुशियां भी हो सकती है, गमी भी हो सकती है। आपका चेहरा देखकर खुश भी हो सकती है और गमगीन भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ के माहौल में लड़की को एक मुर्दा लाश की तरह दूल्हा के आगे पेश कर दिया जाता। अल्लाह इस जाहिलाना रस्म और रिवाज से हम लोगों को बचाए। आप देख लीजिए, गूंगी है कि नहीं, आपका नाम क्या है? आप सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, आप सोते वक्त की दुआ सुना दीजिए। और अगर लड़की भी अगर आपसे पूछे आप जनाजे की दुआ सुना दीजिए तो आप भी सुनाइए। आप ही ना एग्जामिनर बनिए। आप जिस तरह चॉइस करने गए हैं उसको भी चॉइस करने का शरीयत ने इजाजत दी है। शरीयत के दायरे में आप भी रेडी होकर के जाइए। हाँ, तो इस तरीके से आप मुहरिम के सामने देख सकते हैं। दूसरा मसला, अगर किसी लड़की को किसी शख्स ने पैगाम निकाह दिया है, शादी का पैगाम दिया है, तब ऐसी सूरत में जब तक मामला क्लियर ना हो जाए उस वक्त तक आप शादी का पैगाम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर फातिमा को अबू बकर ने शादी का पैगाम दे दिया, मामला चल रहा है, मंथन में है, पेंडिंग में है। अब उमर फातिमा को शादी का पैगाम उस वक्त तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि अबू बकर और फातिमा का मामला क्लियर ना हो जाए। पैगाम पे पैगाम नहीं दे सकते। और आज मामला हमारे यहाँ यही है, कोई लड़का चॉइस कर लिया जाता है, जहेज का झांसा दे करके लोग रिश्ते कटा देते। तो पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह देना कतअन जायज़ नहीं है, बल्कि ये हराम और नाजायज़ काम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यख्तुबु रजुलु अला खितबति अखी हत्ता यनकिहा औ यत्रुक औ कमा काला अलैहि सलातो। कोई भी शख्स अपने भाई के पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह ना दे, या तो कि रास्ता खुल जाए, क्लियर हो जाए कि वो शादी करने की इच्छुक नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता, मामला कट गया, तब आप पैगाम निकाह दीजिए। पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह देना ये हराम और नाजायज़ है। मिसाल के ज़रिया हमने इसको आप लोगों को समझाया। तीसरा मसला, अगर आपसे कोई शख्स मशवरा लेता है किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में, शादी के सिलसिले में, दिगर उमूर में भी, तो आपको अमानतदारी के साथ, पूरी अमानतदारी और दियानतदारी के साथ लड़की के अंदर जो हुनर है, जो खूबियां हैं, जो इंसानी कमियां हैं, पूरी अमानतदारी के साथ बतला देना पड़ेगा। लड़के के अंदर जो खूबियां हैं, शर्त यह है कि आप यकीन के साथ जानते हो। ये नहीं कि लोग कहते हैं लड़की ऐसी है, लोग कहते हैं कि लड़का ऐसा नहीं। आपसे किसी ने मशवरा किया कि भाई मैं फला की बेटी से शादी करना चाहता हूं, अगर आप जानते हैं अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ, लगाने और बजाने, छोड़ने और छुड़वाने के लिए नहीं, तो आप जितनी खूबियां जानते हैं उतनी, ये नहीं कि है गाजर की तरह उंगली है आप कह दें और उससे ज्यादा एकदम सोने की तरह उंगली है ना। अमानतदारी, सच्चाई के साथ जो लड़के के अंदर हुनर है, खूबी है, या इंसानी जो कमियां हैं, जिन कमियों की बुनियाद पर एक कबाहत पाई जाती है, अमानतदारी के साथ बतला दें ऐसे लड़के के अंदर भी। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक हदीस के अंदर कि जब तुमसे कोई मशवरा तलब करे तो वहाँ पर हदीस का मफहूम है कि बाकायदा अमानतदारी के साथ तुम उसको मशवरा दो। होता क्या है, आज हमारे यहाँ का माहौल और समाज इतना गिर चुका है कि लड़की वाले
या लड़के वाले बेचारे कहीं रिश्ता तय भी करते हैं, बातचीत चल रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी मजबूरियाँ हैं लड़की वालों की, बहुत मजबूरियाँ हैं, कई एक मजबूरियाँ हैं। लड़के वाले तो पूछते हैं कि कई फीट लंबी है, कमर कितना है, कितना पढ़ी हुई है। एक वाकया मैं जिक्र करूँ, वक्त बड़ा मुख्तसर है। हमारी एक बच्ची का रिश्ता तय था। एक साहब ने, बहुत मालदार है, बहुत मालदार, एक साहब ने मेरे पास वास्ते से एक आदमी को भेजा, कहा हमारा अपने लड़के की तारीफ की, तो पूछते हैं आपकी लड़की कई फीट लंबी है। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जानता, कहीं हॉस्पिटल में ले जा करके नाप लीजिए। फिर उसके बाद पूछते कि आँख कैसी है। हमने कहा जैसी भाई बहुत सारी चीज़ें। अच्छा पूछे कि आपकी बच्ची इंग्लिश कितनी पढ़ी हुई है। मैंने कहा भैया बस इंग्लिश तो बहुत मुख्तसर पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी में बोल लेती है। मैंने कहा नहीं। अब उनको जितना पूछना था, और वो अपने आप को अहले हदीस के धन का बड़ा जोश था, उनको इकलौता बेटा था। जब वो पूछ चुके तो मैंने कहा भैया आपका लड़का अरबी में मेरी बच्ची से बातचीत कर पाएगा? आपका बच्चा कुरान पढ़ लेता है, आपके बच्चे को नमाज की सारी दुआएं याद हैं, आपका बच्चा कितना पढ़ा? कहे मुझे साहब पढ़ा तो न पे, हाई स्कूल पढ़ा है। हमने कहा कै परसेंट लाया था? 60 बंद। लड़के वालों, लड़कियों के बारे में बहुत शर्तें तलाशते हो, बहुत चीजें तलाशते हो। जरा अपने गोद में पलने वाले बच्चे के किरदार को देख लो, उसके अखलाक को देख लो, उसके इल्म को देख लो, उसकी नमाज रोजा को देख लो। लड़कियों में अच्छाई ढूंढते हो, ढूंढना भी चाहिए। ऐसे ही अपने लड़के को अच्छाई वाला बनाना चाहिए। तो अगर कोई शख्स आपसे किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में मशवरा तलब करता है, तो अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ सच्चा मशवरा और सही सच्ची बातें कहनी चाहिए। आखिरी मसला पैगाम निकाह के बारे में। अगर कोई औरत पहले शादीशुदा थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद वो 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजार रही है, तो जब तक इद्दत खत्म ना हो जाए, खुले लफ्जों में उस औरत को शादी का पैगाम आप नहीं दे सकते। एक वो औरत जो अपने शौहर की वफात की वजह से 4 महीना 10 दिन जो इद्दत है, वो इद्दत गुजार रही है, तो दौराने इद्दत आप खुले लफ्जों में सराहत के साथ, वजाहत के साथ उस लड़की को, उस बेवा औरत को शादी का पैगाम नहीं दे सकते। हाँ, इशारा किनाया कर सकते हैं। इशारा किनाया, जैसे किसी के जरिए या शादी करने के आप अज़्म इरादा करते हैं, ज़रा दुआ कीजिए आप ही जैसी कोई नेक औरत मिल जाती तो मैं भी अपना घर बसा लेता। अल्लाह करे मुझे भी आप जैसी मुझे कोई अल्लाह ताला दे दे, अल्लाह दे दे। इस तरह इशारा किनाया। जैसे कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने इद्दत के दरमियान इशारे में इशारा किया था। जब हज़रत उम्मे सलमा अबू सलमा के इंतकाल की वजह से बड़े परेशान थे, तो अल्लाह के रसूल क्या कहते थे? उम्मे सलमा दुआ करो कि अबू सलमा से अच्छा तुम्हें मिल जाए। उम्मे सलमा दुआ करो कि अबू सलमा से अच्छा तुम्हें मिल जाए। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती कि मैं सोचती थी किस रूए ज़मीन पर मैं अबू सलमा के साथ रह चुकी हूँ, उनका नशेब व फराज मैं जानती हूँ, उनका अखलाक तकवा और तहारत मैं जानती हूँ, उनकी संजीदगी और मतानत मैं जानती हूँ। क्या अबू सलमा से भी कोई ज़्यादा अच्छा आज की दुनिया में मौजूद है? ये अल्लाह के रसूल ने इशारा किया था। जब अल्लाह के रसूल ने इद्दत गुजरने के बाद पैगाम निकाह दिया उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, तो उम्मे सलमा कहते अब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा और किनाया समझी कि सही बात है, अल्लाह के रसूल से अफजल और बेहतर कौन हो सकता है। तो इशारे और किनाए में आप पैगाम निकाह दे सकते हैं, वरना आप पैगाम निकाह नहीं दे सकते।
آخری بات، پیغام نکاح دینے سے پہلے دیکھ لیں شریعت کے دائرے میں، تب پیغام نکاح دیں شریعت کے دائرے میں، اور پیغام نکاح دینے کے بعد عقد مسنون کر لیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور عقد مسنون کرنے کے بعد لاکھ اتار چڑھاؤ آئے، نشیب و فراز آئے، حالات بگڑے یا بنے، کوشش یہ کرنی چاہیے خاص طور پر شوہروں کو کہ وہ پوری زندگی نبھانے کے لیے ایک بندھن میں ہوئے تھے، اللہ کے کلمہ کے ذریعہ اس لڑکی کے جسم کو اپنے لیے حلال کیا تھا، پوری زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں، الا یہ کہ بیوی بدکار ہو، الا یہ کہ بیوی فحشکار ہو، الا یہ کہ بیوی زناکار ہو، جب مسئلہ دوسرا بنتا ہے۔ اور یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے شادی کر لیں، سال بھر رکھے طلاق دے، دوسرے سے کری سال بھر رکھے، نہیں، وفاداری، حسن سلوک، حسن معاشرت۔ وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شادی سے پہلے لڑکیوں کو دیکھنے، پیغام نکاح دینے، نکاح کرنے، پوری زندگی وفاداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اسی میں ہم ایسے ہی وقت میں بتلائیں گے نکاح، اس کے ارکان اور اس کی شرطیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔